that until the emotional sensitivity of a person is awakened, he keeps busy in achieving his own individual ambition. He feels he's making great progress in life, but actually we are soul, and the hunger of the soul is really fulfilled by the selfless service of the society. But we cannot understand this fact without the help of a Sadguru. Sadguru helps awaken the Vivek, righteous wisdom in all of us. He helps us understand the real meaning and the true ambition in life. Param Pujya Gurudev has written a story about Samrat Ashok in this book. Who doesn't know the story? I think almost all of us do. But the way Gurudev writes and explains the story, it really touches our heart and also our brain. Our skit is based on this story, and we are very grateful that we have this opportunity to present our beloved Gurudev's thoughts in this Shatabdi celebration. We pray to Pujya Gurudev and to Pujya Dr. Sahib to bless all of us so that we can imbibe this great message in our day-to-day lives, and also that we prove worthy to be his disciples. So please enjoy this skit, Bhav Samvedna Ki Gangotri, by the kids of Gayatri Gyan Kendra, Stamford, Connecticut. The participants are Rucha Shukla, Pranam Kodakra, Urmi Shukla, Neil Shejwalkar, Geeta Pandya, Veda Pandya, Gitika Kodakra, Kuntal Trivedi, and Ketan Shukla. Thank you. Hello. Here is the family of Mr. Ved and Geeta Pandya. Ved is a highly qualified and ambitious engineer who runs a car garage business. Respected, Mr. Ved is a little spoiled and believes in materialistic enjoyment of life. Mrs. Geeta Pandya is also a highly educated person who is more aware towards social services. She is a Yug Nirman volunteer. सुनिए, खाना किचन में रखा है, बच्चों को दे देना। क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? बाल संस्कार क्लास में। लेकिन तुम्हारा क्लास तो फ्राइडे को होता है। वो तो यहाँ का। आज मुझे बाजू की टाउन में जाना है, बच्चों को खाना दे देना। वो तो कुछ नहीं, बच्चे को पिज्जा पसंद है ना, हम पिज्जा मंगवा लेंगे। नहीं नहीं, बच्चों को बिगाड़ो मत। गुरुदेव कहते हैं कि हम सबको घर का सादा खाना खाना है। तुम्हारे गुरुदेव ने सब बुक्स ठीक रखने के लिए नहीं कहा? जहाँ देखो युग निर्माण, जहाँ देखो युग निर्माण, बाथरूम में भी अखंड ज्योति, टीवी के पास युग प्रभाव, और जब मैं बेडरूम में जाता हूँ ना, ऐसा लगता है कि सारी बुक्स मेरे सर पे गिरने वाली है। हाँ, वो सब मैं आकर ठीक कर लूँगी। अब मुझे जाना है। मैंने तुझे वो वेकेशन डील के बारे में बताया था ना? हाँ, वो तूने देखी? थोड़ा बहुत देखा, फिर टाइम नहीं मिला। मैं कल देख लूँगी। अब मुझे देर हो रही है। अरे गीता, आपको रावण याद है? वो पुष्कर विमान उड़ाता था। हाँ, तुझे इतने सारे मंत्र आते हैं कर्मकांड भास्कर से, कोई ऐसा मंत्र नहीं आता जिससे हमारी कार ही उड़ने लगे? कितने पैसे
बच जाते। मैं जा रही हूँ। ये कितनी पढ़ी लिखी है, कुछ कमा के लाएगी, मैंने करके इसे शादी की, ऊपर से MBA का खर्चा भी किया, लेकिन पता नहीं कहाँ से युग निर्माण का भूत सवार हो गया है। पूरी दिन इसमें ही लगी रहती है। अब तक कुछ कमा के लाती तो मेरा भगवत का निर्माण हो गया होता। Then the kids came home. पापा, मुझे भूख लगी है। लंच के लिए क्या है? चलो हम पिज्जा मंगवाते हैं। उर्मी जरा वो पिज्जा वाले का नंबर निकाल। पापा, मम्मी ने खाना बनाया है, हमें घर का खाना खाना है। अरे घर का ही खाना है तो मैं बनाता हूँ ना गरम गरम पकोड़े, वो टेस्टी वाले। पापा, मम्मी ने खाना बनाया है, हमें घर का खाना खाना है। लेकिन पापा ये खाना फेंक करेगा। अरे मम्मी है ना, वो आके खाएगी। ये बिल्कुल बीमार का खाना है। सॉल्ट भी बहुत कम और चीनी भी बहुत कम और मसाले जरा भी नहीं। पापा, मसाले कम होता है। अरे प्रणव बेटा, मेरी बॉडी के लिए थोड़े से टॉक्सिन चाहिए। मेरे लिए तो ये टॉनिक है, टॉनिक। Mr. Wade's best friend is named Kishan. Wade had gone to a wedding for a week with his family. He had taken the help of Kishan to take care of his car garage business while he was away. Kishan has now come to see Wade. हाय वेद, कैसे हो? शादी कैसी रही? अरे बहुत मजा आया था। उन्होंने बहुत खर्चा किया। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया का खाना वहाँ ही था। सही। हाँ। And by the way, thank you so much. You handled my garage business. अरे कार आई थी रिपेयर करने के लिए। वो रजनी भाई की कार वापस आई थी। Don't tell me you fixed his car. वही तो तुम्हारा बिजनेस है ना? सत्यानाश। उसकी कार रिपेयर करके करके ही तो मैंने ये मर्सिडीज खरीदी। जब वो कार गैराज में आती है तब मैं उसका कुछ और बिगाड़ देता हूँ। ऐसे तो ये मर्सिडीज आई। आई सी, तू तो बड़ा स्मार्ट निकला। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है, बेईमानी है। अरे छोड़ो, let's go watch the game. Okay. Good match on today. गीता, थोड़े से समोसे तल देना और साथ में थोड़ा अमृत पिलाना। अमृत? अरे हमारा बियर ड्रिंक्स। ओके। Someone is at the door. Wade and Kishan are too busy watching the game. They don't care to answer the bell. सुनते नहीं, कोई दरवाजे पे है। ये तो स्पोर्ट्स में पागल हो जाते हैं। बहन जी, मेरा लड़का बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। रुको, कोई किसान आया है। उनको शहर का अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आपको मदद करनी चाहिए। मदद की तो मदद? मैं इतनी इंटरेस्टिंग गेम छोड़कर तुझे मदद करने के लिए जाऊं क्या? बोले 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद आना। The poor farmer comes back after 2 hours. बहन जी, मेरा लड़का मर रहा है। डॉक्टर
उसे ले जाएंगे? वो किसान फिर से आया, आपको मदद करनी चाहिए। गीता वो गवार बिल्कुल कड़का है, कड़का, कुछ पैसे वैसे नहीं देगा। बोल दे मैं नहीं हूँ। हे गुरुदेव, ये कितने निर्दय हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए। भाई सब नहीं है। The farmer's son died. Let's see what happens today. सुना आपने? वो किसान का लड़का गुजर गया। तो मैं क्या करूँ? हे गुरुदेव, जब तुम बदल जाओगे ना तो युग अवश्य बदल जाएगा। अरे सुन, तुम्हारा वो चेतना सेंटर से फोन आया था, कुछ शताब्दी प्रोग्राम के लिए डोनेशन मांग रहे थे। तो हमको देने चाहिए अच्छे कामों के लिए। क्यों? हम इस तरह देते रहेंगे तो हम बड़े घर में कब जाएंगे? फिर आपने क्या कहा? मैंने बोल दिया कि गीता यज्ञ कराने गई है, जो दक्षिण आएगी वो हम भेज देंगे। जब भगवान आते हैं वो मांगते आते हैं। द्रौपदी और सुदामा के बारे में नहीं मालूम आपको? गीता, मैं सुदामा नहीं हूँ ना, मैं खुद काम करता हूँ। काम कम करते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि लोगों को उल्लू बना के तुम्हारे जेब भरते रहते हो। ये तो गुरुदेव है जो तुम्हारा काम चलाते रहते हैं। तुम गुरुदेव का काम करती रहती है और जॉब भी नहीं करती, उसको मुझे तो कोई फायदा मिलना चाहिए ना। हेलो क्या है? अच्छा A few years passed. Today, a poisonous snake bit the youngest daughter of Veda, leaving her in a critical condition. The doctor said that there is no cure for this poison. The entire family feels helpless. Kishan is also present. अरे अरे, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। हे गुरुदेव। क्या हुआ, क्या हुआ? हमारी बच्ची को पॉइजन सांप ने काट लिया और डॉक्टर कहते हैं इस जहर का कोई इलाज नहीं, कोई कुछ करो। Come on, think of something, किशन। मैं कुछ सोचता हूँ। भाई साहब कुछ करो। हे गुरुदेव। हाँ, मुझे कुछ याद आया। चुप कर, सोचने में नहीं देती। हाँ। अच्छा, अभी मुझे याद आया। मैं किसान को जानता हूँ, वो जहर उतारना जानता है। हम उसको उसके पास लेके जाते हैं। चलो चलते हैं किसान के घर। मैं गाड़ी अभी निकालता हूँ। The group rushed to the poor farmer's house. The farmer quickly understands the emergency of the situation. किसान जी, आओ, जल्दी आओ, बच्चों को दो मेरे पास। The farmer treats the child with some mantra vidya. ये अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। आपकी बहुत मेहरबानी भाई साहब। आपने मुझे पहचाना नहीं? भाई साहब, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। मेरी वजह से आपका बच्चा मर गया था। भाई साहब, औरों को ही जो जीता है, औरों को ही जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म गीता है। ये तो भारतीय संस्कृति है। फिर भी यही अंतर है शिक्षा और विद्या में। ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है। हमें उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। और ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास जो कुछ भी है तो भगवान का दिया हुआ है, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम अगर उसे भगवान का खेत में बो देंगे तो 1000 गुना होकर हमारे पास ही वापस आ जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी।
Ved is feeling very uncomfortable. He feels guilty. He's trying to sleep but cannot. He sees everything that he has done in the past 7 years. All he did so far was egocentric and selfish, just to prove himself big in the society. He could not forget what the farmer did for him. मैंने अब तक क्या किया? मेरे भाइयों से मैंने लड़ाई की, उनको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया। मैंने चालाकी कर करके दूसरों की आवश्यकताओं हड़प कर मेरे लिए जमा कर दी। इंसान के नाम ऐसा कुछ किया ही नहीं मैंने। वो किसान का लड़कों को मैंने ही मार डाला। मैं तो राक्षस हूँ, सिर्फ राक्षस। Puja Gurudev appears in front of him. बेटे, क्या बात है? क्यों परेशान हो? गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। हाँ बेटे, तुम मेरी शरण में ही हो। बताओ क्या बात है? गुरुदेव, देवता किसे कहते हैं? पीड़ा से घिरे लोगों को बचाने, उन्हें सुख पहुंचाने, जो अपने मोह को तिलांजलि दे दे, वो देवता है। और राक्षस गुरुदेव? जो अपने अभिमान को कायम रखने के लिए और दूसरों पे रोब झाड़ने के लिए दूसरों का शोषण करता है, वो राक्षस है। गुरुदेव, क्या मैं देवता बन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटे? कैसे गुरुदेव? अपने अंदर के दिव्य भावों को जगाकर और उन्हें आचरण में लाकर। क्या पहचान है इन भावों को जगने की? उदारता, आत्मीयता, अपनत्व का विस्तार। जब तुम्हारे अंदर के भाव जाग जाएंगे तो तुम्हें कोई पराया नहीं लगेगा। दूसरों को तकलीफ में देखकर तुम निष्क्रिय नहीं रह पाओगे और तुम्हारे हाथ और पैर सेवा में जुटे बिना नहीं रह पाएंगे। और एक चिन्ह है। वो क्या है गुरुदेव? सादा जीवन, उच्च विचार। तुम्हारे जीवन का स्तर एक सामान्य नागरिक की तरह बन जाएगा। गुरुदेव, मैं ऐसा बन जाऊं, इसलिए मैं क्या करूं गुरुदेव? स्वाध्याय और सत्संग, मैंने सब कुछ लिख दिया है। मेरे विचारों को पढ़ो, उन पर चिंतन करो, लोगों के साथ बैठकर उन पर चर्चा करो। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से मैं सुधर जाऊंगा। मैं जरूर देवता बनूंगा। आज से मेरे अंदर का चांडाल समाप्त। बेटे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। With Puja Gurudev's grace, Ved understood everything. There is no limit of his enthusiasm. Ved is a changed man now. He understood that compassion is divine and materialistic ambition is demonic. They both cannot stay together. Ved's inner conscious is awakened now. Ved adopted a simple lifestyle. He started reading revolutionary literature of Param Puja Gurudev. Love and compassion became his nature. He started giving Anshdan and Samayadan for thought transformation activities. He set an example for others around him. Lots of his friends followed. हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने आप को समाज का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। दूसरों के साथ व्यवहार न करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। जय